Namaste, everybody. Today we have Dr. Shipra Dhar. She is a gynecologist by profession, one of the gynecologists. There are many, but what's her specialty and what she has achieved or what she has done through her profession is something really interesting. And it's an honor for me to meet her in person and talk to her about her work. All of us always say as a fashion the sentence कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समाज बचाओ और हम सिर्फ ये बातें करते हैं we never work on it practically. So this doctor has proved it that how we can make this sentence look relatively correct, realistic rather, and how we can bring the positive change to the society. So about her initiative, about her inspiration, and about her motto, and also the way forward is all that we are going to talk to her today. And also we will have more knowledge about womenhood and the respect they deserve. So let us speak to Dr. Shipradhar. Formally welcome, ma'am, to my show. Thank you so much for your time, and let us know about your journey and your profession in a more formal way. First of all, congratulations that your efforts are recognized by PMO office and many more platforms. So congratulations for that. Thank you. So my first question is, do you originally belong to Uttar Pradesh or you belong to some other state of Bharat? No, I originally belong to Uttar Pradesh, and now I am in Varanasi for last 30 years. So I can say that I belong to Varanasi. Definitely. Reason being I'm asking is uh, the literacy rate and the especially women is something that is we are not very satisfied rate in Uttar Pradesh. And what is the reason behind it? It's not only the society, but I think it should be worked at a home level. So that is something I want to definitely talk to you. Why gynecologist profession, ma'am? Why not any other profession? बिकॉज बहुत ऐसा लगता था कि कुछ एक्चुअली बचपन से ही हमको ये था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ सोसाइटी के लिए करना है. तो डेट्स वाई आई ऑप्ट मेडिकल प्रोफेशन. और उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट तो इसलिए क्योंकि आई कैन सर्व ह्यूमैनिटी, आई कैन सर्व लेडीज, एंड दैट्स व्हाई आई ऑप्ट गायनी. I was interested in gynae, but according to merit, I got gynae, so I was very happy. Because ऐसा लगता है कि जैसे इसमें एक कुछ हमने सृजन किया. जैसे हमारे पास पेशेंट एक आई और हम वो गई तो दो होके गई, तो एक कुछ हमने ऐड ऑन किया सोसाइटी में. और इसलिए भी गायनी का हमें था, क्योंकि और सारे डिपार्टमेंट में तो ये है कि एक पेशेंट आता है वो ठीक होके जाता है. हमारे वहाँ ये होता है कि एक पेशेंट आती है वो दो या कभी कभी तीन होके जाते हैं, अगर फिर प्रेगनेंसी रहेगी तो एड ऑन होके जाता है. तो डेफिनेटली उसमें हमेशा खुशी मिलनी है. तो दिस इज द रीजन. और दैट्स व्हाई आई कैन सर्व द लेडीज आल्सो. और बचपन से ही ये था कि जैसे मदर टेरेसा से आई वाज इंस्पायर्ड बाय मदर टेरेसा, कि वो पढ़ा था उनके बारे में, वो सोसाइटी के लिए इतना करती थी. तो मेडिकल प्रोफेशन वाज द बेस्ट प्रोफेशन टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द ह्यूमैनिटी. दैट्स व्हाई आई चूज मेडिकल प्रोफेशन. अदरवाइज माय फादर वाज इंटरेस्टेड दैट आई शुड बी अ इंजीनियर. लेकिन I lost my father when I was very young, not young. I was only 9 years old and I lost my father. Oh, I am a single daughter of my mother. So that's why I opt medical profession, and I told you why I opt gynae. Definitely. That's very interesting because I work with a few doctors on some other initiative, and that's what I observed personally as well. That it's very tricky to
deal with the situation or the challenges of women, health challenges rather, because somewhere in our country, not in our country as such, but across the globe, women health is something which is ignored, either by the family or even at a societal level. It is always a secondary priority, if not ignored. So that is something I want to discuss with you. Now, next question is, how many births have you seen till now? By myself, both male and female, na? Yeah, of course. Acha, acha. It is more than 2000. I think I have not calculated yet, but I Uh-huh. have calculated the girls Girls. which I have delivered free of cost, and that Uh-huh. is 380 till date. 380 till date. 380. I started Oh. my mission from July 2014, Huh. and And what is that mission? 25th since 25th July, I delivered 380 females at my hospital, and the mission was "Beti nahi hai boj, aao badle soch." Hmm. Wonderful. Me थोड़ा and my और ज्यादा husband उसके बारे में, started. थोड़ा और उसके बारे में. अच्छा, एक्चुअली होता ये था कि जैसे ही बिटिया का जन्म हो तो एक बहुत ही डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर आता था पूरे हॉस्पिटल में। अरे बेटी हो गई इस टाइप का, बहुत सैड सा Hmm. सब कुछ। और स्पेशली Hmm. जब पेमेंट का टाइम आए और इनकेस अगर सिजर से डिलीवरी हुई हो हाँ, तो हाँ. वो लोग कहें कि अरे मैडम क्या, लड़की भी हो गई, ऑपरेशन भी हो गया, पेट भी कट गया और लड़की हो गई। तो इस टाइप का तो मतलब बहुत खराब लगता था ये सुन करके Hmm. कि Hmm. ये क्या कि मतलब लड़की के उस पे इतना। Hmm. तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर दीज गर्ल्स एंड फॉर दीज लेडीज हु डिलीवर द फीमेल चाइल्ड। तो Hmm. मतलब हम तो उनके पास, अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, हम जी. उनके पास ये लेके गए कि मतलब कोई गिफ्ट देंगे कि जब हाँ. बिटिया का जन्म होगा तो कोई गिफ्ट देंगे। सो Hmm. एट दैट टाइम दे विल बी हैप्पी, अच्छा अच्छा बिटिया होगी तो ये गिफ्ट मिला। बट माय Hmm. हस्बैंड सेड इन ओनली वन लाइन, अगर तुम उनके चेहरे Hmm. पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी प्रकार का Hmm. कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। तो एट Uh-huh. दैट टाइम आई वाज शॉक्ड कि वी आर प्राइवेट प्रैक्टिशनर, तो Hmm. मतलब व्हाट अबाउट अस, हम लोग का क्या होगा हाँ, अगर हम उनसे कोई पैसा हाँ, नहीं लेंगे। तो ऐसे तो हम हाँ. लोग का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे चलेगा सब कुछ। तो आई जी. थॉट कि अच्छा चलो अभी ये मतलब ऐसे ही बोल दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे Hmm. एक डिलीवरी हुई एंड दैट वाज अ फीमेल चाइल्ड एंड दैट वाज Hmm. नॉर्मल डिलीवरी। सो आई आस्क्ड Hmm. हिम व्हाट टू डू। ही टोल्ड हिम कि नहीं Hmm. नहीं कोई पैसा नहीं लेना उससे। तो आई थॉट अच्छा Hmm. चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी में तो चल जाएगा काम, नहीं लेंगे कोई चल बात जाए. नहीं। हाँ, हाँ, हाँ. नेक्स्ट डे मतलब अगेन नेक्स्ट डे अगेन द फीमेल चाइल्ड डिलीवर्ड एंड दिस डिलीवरी वाज बाय सिजेरियन सेक्शन। Hmm. अगेन आई आस्क्ड हिम व्हाट शुड आई डू। तो ही टोल्ड कि नहीं नहीं कोई पैसा नहीं लेना है। So since that day, 25th July 2014, we जी. started with the mission "Beti Nahi Hai Boj, Aao Badle Soch," and till date, हाँ. 380 girls has been delivered at my Girls hospital. have been delivered without charge. No money charge for Without the charge. birth. Free. Free अ, of cost. एक एक ऐसी and जो आपने स्टेटमेंट रखा है, बेटी नहीं है बोझ, बदलो अपनी सोच. आओ बदले अ, सोच। ये बहुत ही एप्ट स्टेटमेंट है. But if we now let me ask you the masses question कि somewhere um, reasons can be anything, but the baby girl or girl child or a daughter brings a lot of worries to the parents, uh, whatsoever. It can be from the time of birth to the wedding and beyond. It's a constant worry or a concern to parents. That's at least it is seen. And not only illiterate or village
people, but well qualified and well stable people also think that girl is a burden or at least a responsibility, and that is something which takes their lot of energy, क्योंकि उसको पढ़ाना है, बड़ा करना है, बुरी लोगों से बचा के रखना है और उसका भविष्य भी बनाना है। तो इस सब सोच में हम कहीं ना कहीं उसके काफी फ्रीडम को और काफी उसके राइट्स को दबा देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आई गिव हर फ्री हैंड, either she will get into something wrong or the society will take advantage of it. So what do you want to comment on this? ये बात सही है कि बेटी होने पे एक लायबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा लोगों के दिमाग में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी बेटी को इतना मतलब अपने में जैसे कि इसे आत्मनिर्भर बना हाँ जी। दें, तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी राइट फ्रॉम द स्टडी इन द इनिशियल स्टेज। क्योंकि बहुत से अभी तो अब तो नहीं ऐसा है, बट पहले ऐसा होता था कि हम क्यों बेटियों को पढ़ाएं, और वैसे भी उनके पढ़ाई पे इतना खर्चा करें, फिर उनकी शादी करना है, सब तैयारी करनी है। लेकिन अब वो डेफिनेटली सोच बहुत बदल गई है, और ये होना भी चाहिए कि अब कोई पेरेंट ऐसा नहीं है, मतलब मैक्सिमम ये चाहते हैं कि नहीं। और हम लोग जैसे हम लोग क्वालिफाइड लोग को, हम लोग को सोसाइटी में ये मैसेज देना है कि नहीं, हम अपनी बेटियों को पहले पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाएंगे, ताकि कल को कोई डिसीजन, क्योंकि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। उससे डिसीजन मेकिंग आता है, सेल्फ डिपेंडेंस रहती है, किसी पे हम बोझ नहीं रहते हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और जब तक हम पढ़ लिख करके और अपना एक प्लेस नहीं बनाएंगे, तब तक हम में वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि हम अपना कुछ डिसीजन ले सकें। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि वो अपनी बच्चियों Yes. को ये सोच करके ना पढ़ाई लिखाई उनकी रोक दें कि अरे पढ़ लिख के क्या करेगी। डेफिनेटली जब हम उसको पढ़ा लेंगे, उसको आत्मनिर्भर बना लेंगे, तो वो बहुत अपना अपने पे डिपेंडेंट रहेगी, तो उसको कोई लाइफ में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन साथ में हमें उसे संस्कार भी देने हैं, और उसे ही क्यों, हमें अपने बेटों को भी संस्कार देने हैं। मेरा तो ये मानना है कि बचपन से ही हमको अपने बेटी और बेटा दोनों को सेम संस्कार देना है। बेटी को भी ये समझाना है कि बेटा सोसाइटी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तुमको क्या अपने में ऐसा रखना है अपने को कि किसी को तुम पे बुरी नजर डालने की जरूरत ना पड़े, और अपने बेटों को ये संस्कार दें कि तुम किसी के ऊपर बुरी नजर न डालो। तो Perfect. हमें बचपन से अपने बेटी और बेटा दोनों को सेम संस्कार देना है। ऐसा नहीं जैसे कई घरों में ऐसा Yes. होता है कि अरे ये लड़का है, इसको ऐसे करने दो, अरे तुम Yes. लड़की हो, तुम ये Yes. मत करो। ऐसा नहीं है, हमें Yes. दोनों को करना है। लड़कों को भी सिखाना है कि तुमको ही क्या Yes. जरूरत है रात में बाहर जाने की, और लड़कियों को भी सिखाना है कि भाई पूरी कोशिश करो तुम अपने की, भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, हम ऐसा काम ही क्यों करें कि वो लगे। तो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब बेटा और बेटी दोनों को ही समान संस्कार देने हैं, और अपनी Then बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना एबल बनाना है कि वो किसी पे डिपेंडेंट yeah. ना रहे, और साथ में संस्कारित भी करना है कि ऐसा ना हो कि वो अपनी आत्मनिर्भरता को गलत काम में Misuse यूज करे करें। कि पैसा कमाते हैं, हम क्यों किसी से दबे, या हम क्यों ऐसा करें। तो हाँ ऐसा हाँ नहीं है, हाँ। वो आत्मनिर्भर हो लेकिन संस्कारित भी हो, उसकी Yeah. आत्मनिर्भरता पूरी फैमिली के यूज में आए। इस पे इसका ध्यान जी देना है। जी जी। आई मस्ट से कि to not only you but to many women whom I spoke, they have the similar voice that you teach to both, to boys and girls, one, and second thing, to you teach to girls to be more independent, but at the same time um, in a boundary. It should not become a free hand or a misleading life. They get carried away with the situation around them. Abhi, now coming to the state you belong to, somewhere it is a state, whether we like it or not, or whatever development is going on. It is a
illiteracy and poverty stricken state. And you can blame anyone, maybe system, people, or politics for that, but that's the reality. So in that state, many migrant workers who are not staying in the state, or rather not able to earn in the state because of no development or no industry work available. And education is the second thing. So boys are also not educated. And how can we preach girls to be educated? Because mostly when the below poverty line families, they prefer their girls managing the house rather than going out and studying. So ये सिनारियो कहीं ना कहीं तो चेंज होना बहुत आवश्यक है. तो उसके लिए यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से do you see that some change is happening, people are coming forward, or it's the same story? नहीं, हमारे वहाँ अब काफी चेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि बहुत से सोशल वर्कर, बहुत से ऐसे एनजीओज हैं जो इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं. अब बहुत चेंज आया है सोसाइटी में, पहले से अब बहुत चेंज आया है. और अब जैसे हम लोग अपने वहाँ भी हम खुद भी एक ऐसा प्राइमरी एजुकेशन चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स के लिए, जिसमें आसपास की जो बाइयां काम करती हैं, उनकी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती हैं, उनको अपने वहाँ रख करके, एक टीचर रख करके उनको प्राइमरी एजुकेशन दिलवाते हैं, क्योंकि ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए. दिस इज आवर एम. Yes. क्योंकि वो स्कूल जानती ही नहीं है, तो दे डोंट नो व्हाट इज, और उसके इस वजह से उनको एजुकेशन क्या बहुत है? चीटिंग, हाँ, चीट बहुत किए जाते हैं, ऐसे ये बच्चियां चीट बहुत की जाती हैं. तो द मेन एम ऑफ आस इज कि हम लोग उनको मेन स्ट्रीम में लाए. एटलीस्ट कुछ नहीं तो जैसे सामान, दुकान पे सामान ही खरीदने जाए तो उनको पता रहे कि हाँ, कितना हाँ, पैसा देना है, कितना हाँ, हमको रिटर्न मिलना है. क्योंकि yes. पता चला गए और उनको बेवकूफ कर दिया, तुम्हारा हो गया, हिसाब हो गया, तुम जाओ. ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो ऐसे हम ही ऐसे नहीं हैं, ऐसे बहुत से एनजीओज हैं जो इन बच्चियों पे काम कर रहे हैं, और चीजें अब पहले से बहुत बेटर हो रही है. फिर यूपी में अब हमारे गवर्नमेंट की ओर से भी गर्ल्स की प्राइमरी 12th तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई है. I और see. बहुत Okay. सारे गवर्नमेंट स्कूल्स तो पहले भी थे, रनिंग कंडीशन में जी. बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब हाँ. उनमें बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है. और एक जो मिड डे मील दिया जा रहा है, उसका भी एक मेन एम यही रहता है कि बहुत से घर में तो इतनी पॉवर्टी है कि उनको एक टाइम का खाना नहीं मिलता है. तो उस खाने के लालच में भी वो बच्चियां स्कूल आए, एटलीस्ट कम से कम इसी बहाने उनकी एजुकेशन हो जाए. और इन सारी जी. चीज का गवर्नमेंट की ओर से भी ध्यान दिया जा रहा है. और वर्कर्स, जो सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, जी. वो भी इन चीजों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं. और गवर्नमेंट की ओर से भी अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि वेरी गुड. बच्चों के, हाँ, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए. हाँ, तो इससे जो ये माइग्रेशन का जो एक बड़ी समस्या है, उसको भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी. और हाँ, बिल्कुल. खास करके, हाँ, और खास करके जैसे आपने कहा कि गर्ल्स, विमेन थोड़ा शिक्षित रहेंगे तो दे विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन राइट बहुत बहुत, एंड गुड क्योंकि एंड ये बैड. कहा गया है ना कि अगर आप एक मेल को शिक्षा देते हैं तो आप एक मेल को शिक्षित करते हैं, अगर आप फीमेल को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं. इसलिए मेरा ये फैमिली को मानना है, शिक्षित करते हैं. हाँ हाँ, कि लेडीज का शिक्षित होना बहुत जरूरी है. और ट्रू. वैसे भी ये बात भी बिल्कुल साबित है कि किसी भी बच्चे का प्राइमरी अगर एजुकेशन है या प्राइमरी टीचर, तो उसकी मदर ही होती है. तो अगर वो एजुकेटेड है तो इट विल बी बेस्ट पार्ट ऑफ दैट फैमिली, कि वो एजुकेटेड है तो वो यस. हमेशा एक अच्छी बात अपनी बच्ची को सिखाएगी, रादर देन इफ शी इज अनएजुकेटेड. तो इसलिए अनएजुकेटेड, या. हाँ, लेडीज का, गर्ल्स का एजुकेटेड होना इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सोसाइटी, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर Absolutely. सोसाइटी. Absolutely, absolutely. Because somewhere, due to the lack of education, women are also becoming a victim of many unwanted situations or challenges, like, as you said, financially cheating, um, divorce, rape cases, then atrocity, physical abuse,
domestic violence. All this is, and unfortunately, somewhere these girls don't even know that this is wrong. They don't even understand that पति का मारना is not a part of life. ये एक तरह का अत्याचार है. ये भी उन्हें कहीं किसी ने बताया नहीं, नहीं. उन्हें लगा यही जीवन होता है. उसी भावना के वो साथ भी बेचारी देखती आई हैं, बढ़ वो रही है और देखती चल आई रही हैं, है. उनके फादर उनकी मदर के साथ जी करते थे, फिर उनका हस्बैंड अगर कर रहा था, ये तो होता जी. ही है, ऐसा तो होता ही है, जैसे हम लोग के हाँ पास भी आती हाँ हैं हेल्पर्स, तो वो कहती हैं, भाभी ये तो चलता ही है, ये हाँ. तो होता ही है, मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे या इस टाइप का। तो दे डोंट नो दैट दिस इज द रॉन्ग थिंग एंड दे कैन क्लेम फॉर दिस। तो ट्रू यही प्रॉब्लम है। ट्रू. अभी आपके पास कितने गर्ल्स का स्कूल चल फुल टाइम स्कूल चलता है कि इट्स जस्ट नहीं, आंगनवाड़ी काइंड फुल ऑफ? टाइम नहीं, नॉट दिस टाइप ऑफ थिंग। जैसे हाँ. जो पहले तो जैसे हमने स्टार्ट किया जब, तो हम्म, ये बच्चियां स्कूल जाती ही नहीं थी, तो फिर मेरे वहाँ ही हाँ. हम मॉर्निंग में या किसी एक टाइम पे उन लोग साथ फिक्स कर दिया था। तो इनिशियली हम्म, आई टॉट देम, बट नाउ देयर इज अ हम्म, टीचर। तो हम्म, शुरू में तो फिर, लेकिन जब इन लोग ने जब ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो इनका इंटरेस्ट डेवलप हम्म, हुआ, तो इनकी मदर्स ने फिर इनका गवर्नमेंट स्कूल में मतलब एनरोलमेंट करा दिया। तो हाँ. अब नाउ they go to school in the morning and in the evening they come to my place and there is a ओके teacher for them and they ओके. she teaches them, but now हाँ. it is a lockdown time, so या. these days they are not coming. Otherwise in हाँ. the evening they had class at my place and in the morning they used to go to the school. And those girls who now also they are not going to school, they come to my place in the evening for their studies, and there is a कोचिंग. teacher for them. Coaching. ओके. You can say Yeah. like this. Yeah, 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 because which is like it's not only education, there are many things which you teach them. It's not Yes, only yes, the yes, academic. yes, yes, Uh, yes, yes, hmm, many things. yeah. But it is my wish, my me and my husband, that Uh-huh. हम लोग एक ऐसा स्कूल खोलें जहाँ, जैसे अभी जी तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें होती हैं, लेकिन अभी तो जी. सिर्फ एक टीचर है जो इन बच्चियों को देखती है, और मेरे पास प्लेस की भी कमी है। कभी मेरे पास हम्म. फ्यूचर में प्लेस होगा तो एकदम अच्छे सा स्कूल बना करके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली फॉर गर्ल्स, और रहे हम्म. एटलीस्ट 12th तक तो हम अपने वहां पढ़ाएं, और उसके बाद अगर उसमें से हाँ. कोई ऐसी गर्ल हो जिसको हम आगे लेके जा सकते आगे हैं पढ़ना किसी और चाहे. प्रोफेशनल हाँ हाँ स्टडीज के लिए, तो उसका कहीं हाँ. एडमिशन करा देंगे। तो ये हमारा एक बिल्कुल. नेक्स्ट, ये भी हमारा है। इसमें अब देखते हाँ. हैं हमको भगवान कितनी हेल्प करते हैं। डेफिनेटली. डेफिनेटली, क्यों नहीं. आप बाबा विश्वनाथ के नगरी से हो और इतना नेक काम कर रहे हो, तो आगे तो वो ले जाएगा ही जाएगा पक्का. आपके हस्बैंड को, डॉक्टर साहब को, मुझे विशेष तो रूप से धन्यवाद कहना है या अप्रिशिएट करना है रादर कि ये सोच उनकी है कि यू बिल्कुल डोंट बिल्कुल। चार्ज फॉर द बेबी गर्ल व्हेन शी इज बोर्न. डोंट. ये बहुत ही मतलब it's not about only the family. He is supporting a big class of a society. Almost 49% of population is women in India. And डेफिनेटली ये पूरी सोच women उनकी है, क्योंकि हमने तो बस ये सोचा था कि कोई गिफ्ट देंगे, इससे ज्यादा हम देंगे नहीं जी. सोच पाते थे, शायद अपने दिमाग से मेरा इतना ना चलता। हमने बस Right. ये सोचा कि एक गिफ्ट दे देंगे और उससे वो लोग खुश हो जाएंगे, Correct. लेकिन ये पूरी सोच डॉक्टर साहब की ही है कि नहीं, अगर तुम उनके जी. चेहरे पे खुशी, इनका दिस वाज द सेंटेंस ऑफ दिस, अगर तुम उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती है तो उनसे कोई Correct. डिलीवरी चार्ज मत Correct. लो। हम Correct. शायद इतना बड़ा मेरा ना सोच पाते। जी, मेरा जो ये प्रोग्राम है, इट इज कॉल्ड dialogues with women achievers, and that's the reason I'm not inviting doctor. Otherwise it would have been my honor or privilege to talk to him. मैं मुझे बहुत सारा ऐसा धर्म संकट में मैं आ जाती हूँ कि जब भी मैं किसी महिला के साथ बात करती हूँ, तब उनके पीछे, as they say that there is a always a woman behind a successful man and there is always a man behind a successful woman. So नो डाउट। मैंने बहुत बार ये देखा है, but somehow I am not able to invite them. So they join the talk show and then they ping me that I have an answer. Can I? I said, no, no, no. You are an audience. You can't. You can't talk, but let her talk. You are an audience. You can ask a question if you want.
So that's how it goes. Wonderful. So मैम कोई ऐसा ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा कि व्हाट आई एम डूइंग इज द करेक्ट थिंग, इट्स वर्थ इट। नहीं, डेफिनेटली। अब ये जैसे डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद हम लोग साइन कराते हैं ना कि लड़की हुई, जी। मतलब मुझे लड़की हुई है, मुझे लड़का हुआ, वट एवर इट इज। तो हाँ। यूजुअली हाँ। आई डू द जॉब कि मतलब हम अपने सामने साइन कराते हैं कि मुझे लड़की प्राप्त हुई जी। है, मुझे। तो कुछ उनमें से कुछ ऐसा होते हैं जो आते हैं और कहते हैं कि हम्म। बहुत अच्छा काम कर रही है मैडम आप, बहुत अच्छा लगता है, हम्म। और हम अपनी बिटिया को हम्म। आप जैसा बनाना चाहते हैं। तो तब हाँ। लगता है कि रियली आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग गुड फॉर सोसाइटी। और उस समय गुड फॉर बहुत खुशी सोसाइटी। होती है। और सही जी। बात है, पैसा कभी कभी ऐसा लगता है कि मैक्सिमम टाइम अब ऐसा लगता है कि पैसे से हाँ। सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हाँ। लोग के पास हाँ। पैसा बहुत ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता है। या ऐसा ना। हो जाता है कभी कभी 6 7 8 कंटिन्यूअसली बेटियां ही हो रही हैं, तो जी। उस समय हमारा तो बिग जीरो हो जाता है। ट्रू 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 ट्रू। Because I was the वेरी only ट्रू। earning person that time. ये कहते हैं वेरी कोई ट्रू। बात नहीं, वेरी ट्रू। घबराओ मत, हम हैं, सब हो जाएगा। और उनका एक और पेट डायलॉग है कि हमने कहा, हाँ। जैसे कभी कभी लगता है कि अरे बाप रे कैसे काम चलेगा, तो कह रहे आवश्यकताओं को कम कर दो, कष्ट अपने आप दूर हाँ। हो जाएगा। एकदम तो सटीक ये बात भी कह एक, रहे हैं। हाँ, एकदम आवश्यकताओं सटीक को बात कह रहे कष्ट अपने आप हैं। दूर हो जी। जाएगा। जी। तो जी। बस कम आवश्यकताओं के साथ सारी चीजें हो जाती हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट। हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब मैं खुद चलाती हूँ। हम लोग गीता अभ्यास करते हैं, भगवत गीता का। तो अच्छा। जिसमें हम जितने भी भाषाओं की हमारी महिला है, हम उस उन्हीं भाषाओं में उस अध्याय का अर्थ समझाते हैं, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हाँ। मुझे इस भाषा में समझ नहीं आ रहा है, मुझे इस जी। भाषा में समझ नहीं आ रहा है। तो वी हम्म। ट्राई टू मेक इट वेरी easy and convenient for the woman to understand it in her own language and then implement it in a life. And the same message every day we discuss कि लोक संग्रह के लिए, लोगों के उपयोग के लिए जो काम करोगे, तो दैट इज समथिंग विल टेक यू टू गॉड। एंड इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट अर्थ संपादन, अर्थार्जन, तो देन यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। एज यू सेड, जितना भी मिला उतना कम ही होता है। जो हम्म। पूरा तो कभी मिलता नहीं। सही बात। तो अभी आपने बता तो दिया मुझे फ्यूचर प्लान के बारे में कि आपको एक स्कूल खोलना है ना? जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ लड़कियों को कॉस्ट। पढ़ाएंगे। ये आपका ड्रीम है। नहीं, बहुत ही ऐसी खराब बात है। और ऐसे ही तो हमारे हरियाणा में भी तो यही होता था, और इसीलिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी। बेटी बचाओ पढ़ाओ का नारा लिया। इसलिए जी। क्योंकि वहां पे भी यही होता था कि या तो उनको जन्म नहीं लेने दिया जाता था, हम्म। मतलब इधर भ्रूण हत्या होती थी, या जी। फिर जी। डिलीवरी के बाद मार दिया जाता। सेम यही सिचुएशन वहां पे भी थी। लेकिन हम्म। ये बहुत ही, क्योंकि सही बात है कि अगर बेटियां नहीं होंगी, तो जैसे हमने हम्म। कहा कि हमारी डिलीवरी होती है तो वो एक का दो होके जाती है। तो हमारे जी। वहाँ बेटियां नहीं होंगी, या कहीं पे भी बेटियां नहीं होंगी, तो हम नेक्स्ट जनरेशन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ये पावर सिर्फ ईश्वर ने एक बेटी को ही दी है, एक विमेन को ही दी है, कि वो किसी का कितना भी साइंस अभी हो पाया, लेकिन ये तो चीज ये बेटी के साथ ही है कि वो एक बर्थ एक बेटी ही देगी। बेटी है तो सृष्टि है। क्योंकि इस जैसे भगवान जन्म देते हैं, और भगवान के बाद अगर औरत है तो औरत में ही जन्म देने की प्रॉपर्टी है, वो मेल्स में नहीं है। तो ये बात तो हमें समझना ही पड़ेगा ना। अगर हम अपनी बेटी नहीं रख रहे हैं, तो कल को हमारे वहां बहू नहीं आएगी, और बहू नहीं आएगी तो फिर हमारे मतलब लड़की होगी नहीं, तो मेरे बेटे के साथ कौन शादी करेगा? और फिर जैसे लोग कहते हैं कि वंश चलाना, तो वंश चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी बेटी ही तो है। अगर बेटा वंश चला रहा है तो बेटे की शादी एक बेटी से ही होनी है, मतलब किसी और घर की बेटी ही मेरे बेटे से शादी करेगी, और फिर वो हमारा वंश चलाएगी। तो कैसे चलाएगी? अगर लड़कियां होंगी ही नहीं तो हमारे बेटे से शादी कौन करेगा? और शादी नहीं होगी बेटे की, तो फिर आगे हमारा वंश कैसे चलेगा?
और वंश चलाने का बड़ा है कि भाई हमारा लड़के क्यों चाहिए हमको, क्योंकि लड़के हमारा वंश चलाते हैं। तो लड़के अकेले तो वंश चलाएंगे नहीं, उनके साथ एक 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 किसी एक घर की बेटी तो चाहिए ही होगी ना। तो हम अगर ऐसी बेटियों को मार देंगे तो, और यही बात हुई कि जेंडर इक्वेशन इतना ज्यादा कम हो गया, जी जी फॉल करने लगा, इसीलिए ये सारे स्टेप्स उठाने पड़े कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे स्टेप्स। बेटी बचाओ जी इसलिए हुआ कि बेटियां मारी जा रही थी, और पढ़ाओ जी इसलिए हुआ कि बेटियां पढ़ लिख लेंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी, तो एक नए पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करेंगी, श्योर और अपने को भी हेल्प करेंगी। क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो डेफिनेटली वो जिस घर जाएगी उस पूरे घर का माहौल बदलेगी। जो कई सारी ऐसी चीजें चली आ रही हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये होता है, तो उन चीजों को वो कहेगी कि नहीं, ये यहाँ ये सही है, यहाँ ये गलत है, ये डिसीजन लेने में उसकी कैपेसिटी रहेगी, और बताने का उसको रहेगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा करने से ये चीजें नुकसान हो सकती हैं। तो आज नहीं कल उस घर वालों को भी लगेगा कि हाँ वो ठीक ही कह रही थी। तो पढ़ाई का तो हमेशा ही एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है सोसाइटी में, तो इसलिए भी जरूरी है। lots of good wishes from me and my team, and it's a wonderful job you and doctor, so special thanks to the doctor, because of his inspiration you are going on this path. So thanks to him and you as well, and all the best for your future plans. Thanks to you also. It was a great pleasure for me also to be with all of you, and thank you very much. Thank you, ma'am. Pleasure is all mine. All the best. Take care of yourself. Thank Namaste. Namaste. you. Jai Hind. Jai Hind.